water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. پاکستان قومی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کے لیے پرعزم، امن ہماری خواہش، لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قومی وقار اور مفاد کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کا پانی روکا گیا تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ کسی کو بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. پہلگام واقعے پر ہمارے ہمسایہ ملک نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا، بیش بہا قربانیاں بھی دیں۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ایک متنازع علاقہ ہے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ While we desire peaceful neighborly relations with Kabul, this cannot happen so long as the Afghan soil is being used by Fitna al-Khawarij to attack Pakistanis. پاکستان عالمی امن کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہ ہے۔ افغانستان کے ساتھ پرامن اور مستحکم تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے نائب وزیر اعظم نے کابل کا دورہ کیا۔ افغان حکومت کو فتنہ الخارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال رکوانا چاہیے۔ معاشی استحکام کے لیے کوششیں برابر ہو رہی ہیں۔ سرمایہ کاری میں اضافے اور اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. دو قومی نظریہ، گودی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا۔ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کی وجود کی بنیاد رہا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں دو قومی نظریے کو بیان کیا تھا۔ بھارتی گودی میڈیا نے حقائق کو چھپاتے ہوئے دو قومی نظریے کو مسخ کرنے کی مذموم کوشش کی۔ آرمی چیف نے دو قومی نظریے اور قائد کے الفاظ کو دہرایا تو گودی میڈیا کو آگ لگ گئی۔ بھارتی میڈیا نے دو قومی نظریے کے بیان کو ہندو کارڈ کے طور پر استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار، علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بھارتی اقدامات کے تناظر میں پاکستان کے فیصلوں سے آگاہ کیا، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔
पहलगाम वारदात, मोदी की दहशतगर्द ज़हनियत की कारस्तानी। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पंजाब, कश्मीर में नफरत की सियासत जारी। नफरत की सियासत और हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा, आपसे गिनती भी नहीं होगी। दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट न करें, मोदी अपनी औकात में रहें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। दरियाए सिंध में हमारा पानी बहेगा या तुम्हारा खून। दरियाए सिंध हमारा है और ये हमारा रहेगा। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका मारे। मोदी ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए झूठे इल्जामात लगाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। India and Pakistan, there are tensions after the attack in Kashmir. You got any message for them? Are you going to be talking to their leaders? Close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned about, how are you concerned are you about that? There have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. इलाकाई अमन को बर्बाद करने की भारतीय साजिश पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा। अमरीकी सदर का रद्द अमल सामने आ गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दोनों हमसाय ममालिक में तनाव है और कशीदगी तवील अरसे से जारी है। भारत और पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा दो तरफा बातचीत से हल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने तैयारे एयरफोर्स वन में सहाफियों से बातचीत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में कैडेट्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर सलामी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और गैर मुल्की सफारतकार और कैडेट्स के अहल खाना तकरीब में मौजूद। तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की मुसल्लह अफवाज में बाज़ाब्ता शमूलियत। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। 13 कैडेट्स का ताल्लुक दोस्त ममालिक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। वफाकी वजीर खजाना की DFC के कायम मकाम CEO, बरतानवी वजीर ममलकत, बैनुल-अक़वामी तरक्की और अमरीकी एग्जिम बैंक के सीनियर नुमाइंदगान से मुलाकातें। तिजारती ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की बेहतर होती हुई मौशी सूरत हाल और मालियाती इस्लाहात से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर सेहत का सामान शिफा फाउंडेशन का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बोर्ड के मेंबरान से मुलाकात। मकामी तिब्बी आलात की तैयारी के लिए हुकूमती ताउन पर तबादला ख्याल। फाउंडेशन ने वज़ीर सेहत को पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद वेंटिलेटर्स के बारे में ब्रीफ किया। मकामी सतह पर जदीद आलात की तैयारी खुशाइंद इकदाम है। हुकूमत मकामी सनत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मुस्तफ़ा कमाल। हुकूमत पंजाब के मौसर और पायदार इक़दामात की बदौलत किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रुकन सूबाई असम्बली मलिक नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल से गुफ्तगू।
मलिक नौशेर खान अंजुम ने पंजाब को फलाही रियासत में तब्दील करने के मरियम नवाज शरीफ के अज़्म को काबिल तहसीन करार दिया। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और गोवा के लिए परवासें मुतासिर। यूरोप और अमेरिका के लिए परवासों के दौरानिया में इजाफा। ईंधन टिकट्स भी महंगे। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। भारतीय फौज जाली मुकाबलों की स्पेशलिस्ट। जाली मुकाबलों की हकीकत आलमी सतह पर आया। भारतीय फौज का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह मकामी बाशिंदे शहीद। मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। लीबिया में कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 6 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर पहुंच गईं। हुक्काम ने लाहौर एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल करके वरसा के हवाले की। जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 गुजरांवाला और 1 का ताल्लुक सियालकोट से है। पाकिस्तान सुपर लीग का 16वां मैच आज कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। मैच रात 8 बजे से आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। कलंदर्स के 4 जबकि सुल्तान के 2 पॉइंट्स। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का 15वां मैच। कोयटा ग्लैडिएटर्स की कराची किंग्स के खिलाफ 5 रन से कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स 19.3 ओवर्स में 142 रन पर आउट। कराची किंग्स 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 137 रन बना सके। बीएसएल के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग 10 पॉइंट्स टेबल। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। कराची किंग्स दूसरे, लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर बराजमान। ज़ल्मी चौथे, ग्लैडिएटर्स 5वें जबकि सुल्तान आखिरी नंबर पर। स्पेन में WTA मास्टर्स 1000 मैड्रिड ओपन खातीन सिंगल्स। अमेरिका की जेसिका पेगोला की तीसरे मरहले में रसाई। बेलारूस की आरियाना सेबेलिंका और इटली की जैस्मिन पाओलिनी भी राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए। और ATP मास्टर्स 1000 मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल्स। अमेरिका के बेन शेल्टन, इटली के फ्लेवियो खोबोली तीसरे मरहले में पहुंच गए। स्पेन के अलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना, अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव भी अपने मैचेस में कामयाब रहे। पहलगाम में दहशतगर्दी की मशकूक कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान का एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मकासद को हासिल करने की नाकाम कोशिश है। हकीकत में बीजेपी की हुकूमत गुज़िश्ता 15 बरसों से इसी बैनुल अक़वामी सालिसी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ रखने वाले मुआहदे को खत्म करने के लिए बहाने तलाश कर रही थी, जिसके पीछे एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान दुश्मनी और इलाकाई बालादस्ती। मगर पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, पुरजोश और पुरअज़्म कौम और सलामती के तकाज़ों से बाखबर हुकूमत हिंदुस्तान की चालों का जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कौमी जज्बात और मुल्की तरक्की के फरीज़े का भरपूर इज़हार। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। किसी भी जारहियत का कौमी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान का कौमी मफाद और लाइफलाइन है। हिंदुस्तान के इक़दामात के जवाब में
اس سے ہر قسم کی تجارت معطل رہے گی۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارت کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ شملہ معاہدے سمیت دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے۔ ہندوستان پاکستانی سرحدوں پر کشیدگی کے بعد اب پانی کا کارڈ کھیل کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے، مگر پاکستان اپنی اندرونی سلامتی، کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور علاقائی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور وہ بھی اس عزم کے ساتھ کہ اب کی بار کسی مہم جوئی کا جواب فروری 2019 سے بڑھ کر ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ اور ناظرین، آج ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں سچویشن روم میں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو اس سچویشن روم میں لمحہ با لمحہ باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر ڈیفنس اینالسٹ رانا شہزاد السلام صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں کنٹرولر پی ٹی وی نیوز ریاض برکی صاحب۔ دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور آج پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ان سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ قومی وقار اور مفاد کے خلاف ہر قسم کی مہم جوئی کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کا پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، مہم جوئی ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب ملے گا۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر قومی موقف پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بغیر ثبوت الزام تراشی بھارت کا وتیرہ ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد ایک بار پھر بغیر ثبوت بے بنیاد الزامات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امن ہماری خواہش، لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Any attempt to stop, reduce, or divert
the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ता है। कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved despite multiple UN resolutions. Let there be no doubt, Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifices. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की वजह से भारी जानी और माली नुकसान उठाया है। दुनिया के किसी मुल्क ने हमारी जितनी कुर्बानियां नहीं दी। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। We have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain better than we Pakistanis? Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? Which country of the world has suffered more economic losses than Pakistan to the tune of $600 billion to fight and defeat terrorism? There cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color. And that has been demonstrated beyond any ray of doubt. अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की हमारी तरजीह है। अफगान अबूरी हुकूमत को फितना ख्वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकना होगा। Unfortunately, despite our best and sincere efforts, terrorist activities continue to emanate from Afghan territory. In this behalf, we have made lots of efforts. We have also delivered a strong and clear message to the interim Afghan government that while we desire peaceful neighborly relations with Kabul, this cannot happen so long as the Afghan soil is being used by fitna al-Khawarij to attack Pakistanis. वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी को इसराइली मज़ालिम रोकना होंगे। Pakistan is fully committed to advancing global peace and security and upholding the UN Charter. In fact, at even and every given opportunity and platform, we have raised our voice in support of the innocent people of Palestine, whose demand for a free and sovereign state has been sanctified in numerous UN resolutions. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें बआवर हो रही हैं। हुकूमत की तवज्जो सरमायाकारी में इजाफे और इक्तसादी तरक्की पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मफाद की तकमील और अज़्म का निशान है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी पेशेवराना सलाहियतों की वजह से एक नाम रखती हैं। वज़ीर आज़म ने कामयाब होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए इस यकीन का इजहार किया कि वो अपनी लगन और जज्बे से कौमी वकार और मुल्की सालमियत के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
सिचुएशन रूम में आपका एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सीनियर डिफेंस एनालिस्ट राना शहजादुस्सलाम और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कंट्रोलर PTV न्यूज़ रियाज बरकी साहब। और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की पैदा होने वाली जो सूरत हाल है लम्हा ब लम्हा उससे हम आपको भी अपडेट कर रहे हैं और इनसे भी डिस्कशन के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। रियाज बरकी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है और पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई किसी भूल में ना रहे, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिचुएशन रूम बनाया गया है इसका मकसद क्या है, क्योंकि इंडिया में जो इंडियन मीडिया है वो एक प्रोपेगंडे की सूरत हाल में है, बेपनाह प्रोपेगंडा कर रहा है, एक तरफा जो है वो प्रोपेगंडा कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया ने भी जो है अपना किरदार शुरू कर दिया है। अगरचे मैं आपको बता दूं कि मैं 2 मरतबा इंडिया जा चुका हूं, मुख्तलिफ जो हमारी टॉक्स होती हैं। इंडियन मीडिया जो रेटिंग की दौड़ है ना, उसमें हमारे साथ ही जब मीडिया के पर्सनल होते थे, जो मीडिया के बंदे होते थे, जैसे ही उनका बीपर वगैरह शुरू होता था तो वो एकदम ऐसे लगता था जैसे कोई जंग शुरू हो गई है, बिल्कुल यानी दुश्मनों की तरह। उसके बाद नॉर्मल हो जाते थे। तो ये उनका है। जब तक जहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया का ताल्लुक़ है वो एक डिसेंट और लॉजिकल वे में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, जिस तरह उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मीडिया, मैं सुबह अब देख रहा था जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी सवाल उठा रहा है कि किस तरह आपने चंद ही मिनट के बाद उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया। देखिए, दुनिया में जब भी किसी बड़ी पावर ने भी अगर कहीं पे एग्रेशन की कोशिश की है, एग्रेशन की है, तो उसके लिए पहले वो बुनियाद बनाते हैं, एक केस बिल्ड करते हैं, कई महीने लगाते हैं, उसके बाद जो है ना वो कोई कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। और अभी जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि हम किसी भी मुस्तनद, ठीक है, क्रेडिबल और जो इम्पार्शल अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, हम उसके लिए तैयार हैं। आप आएँ, तहकीकात करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बिल्कुल सही, आपने बात की तहकीकात की। तो राना शहजादुस्सलाम, आपकी जानिब आना चाहूँगी। भारत की इल्ज़ाम तराशियों की तो हमने देखा कि हमेशा से तारीख रही है, और अब पाकिस्तान ने जब गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है, तो इस पर भारत की खामोशी आप क्या समझते हैं, खुद मशकूक नहीं लग रही? जी बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ये वतीरा रहा है भारत का कि जब भी भारत में कोई अंदरूनी मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है तो वो पाकिस्तान की तरफ अपनी आवाम की तवज्जो का रुख मोड़ते हैं, ताकि जो उनके अंदर के मसाइल हैं उस तक भारतीय आवाम का जो तवज्जो बढ़ जाए। हाल ही में भारत में एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त जो है वो मंजर-ए-आम पर आया, जब वक्फ बिल मोदी इंतहा पसंद हुकूमत ने इसको बज़ोर कुव्वत जो है वो पार्लियामेंट से पास करवाया, जिसके बाद पूरे भारत में बग़ैर किसी रंगो मज़हब नस्ल के तमाम मखलूक जो है अवाम वो बाहर आ गई इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़। तो अब इंतहा पसंद जो फाशिस्ट मोदी है उसको कोई ऐसा इशू चाहिए था जिससे वो भारतीय अवाम की तवज्जो इस वक्फ बिल के इशू से हटा सके। तो ये अचानक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उन्होंने ड्रामा रचाया। इससे पहले भी मैं आपको माजी में लेके जाता हूँ कि आपको याद होगा कि इससे पहले राजौड़ी में उन्होंने इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। फिर जो 27 फरवरी 2019 को उन्होंने बालाकोट पर एक बड़ा ही उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान पर हमला करके हैं, जबकि वो जब गैर जानबदार जो है हक़ाइक़ जानने वाले सहाफ़ी वहाँ पर गए तो वहाँ पर सिर्फ जो भारतीय एयरफोर्स के जहाज़ थे वो अपना पे लोड गिरा के और फ़रार हो गए। जब वो दोबारा आए तो फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशन स्विफ्ट रटार्ट की सूरत में मुंह तोड़ जवाब सामने है। तो ये भारत का एक वतीरा रहा है। अब मैं एक और हकीकत की तरफ आपको लेके चलूँगा कि भारत इस वक्त उसकी मोर दैन 20 जो स्टेट्स हैं या सूबे, वहाँ पर भारत से अलहदगी की बड़ी स्ट्रॉन्ग तहरीकें चल रही हैं। ख़ास तौर पर आजकल नागालैंड और वहाँ पर तो बाकायदा उन्होंने अपना रियासत का नया परचम तक, उन्होंने अपना तराना तक जो है वो जारी कर दिया है। तो इस वक्त भारत को अपने अंदरूनी मसाइल से अब अपनी आवाम की नज़रें हटाने के लिए ये इस तरह का इशू चाहिए था। अब इंतहा पसंद मोदी ने जो चूरन बेचना था वो 15 साल से भारत में जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में है।
تو اس کے تمام جو چورن بک چکے ہیں. ایک یہی رہتا ہے, آپ دیکھیں پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں, عام انتخابات, ہماری پالیٹکس میں کبھی بھی بھارت کو اس طرح شامل نہیں کیا جاتا, لیکن جو ہی انڈیا میں کوئی عام انتخابات ہوتے ہیں تو ان کا جو مین ایجنڈا وہ پاکستان مخالف ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہا پسند ہندوؤں کا صرف ایک ہی چورن باقی رہ گیا ہے, وہ ہے پاکستان مخالف ایجنڈا. لیکن آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو ایک میں سمجھتا ہوں دبنگ خطاب کیا ہے, اس سے واضح میسج گیا ہے بھارت کو بھی دنیا کو بھی کہ اگر پاکستان کے شہریوں کو نقصان ہوا تو بھارت کا بھی کوئی شہری محفوظ نہیں رہے گا. ہم جو ہے وہ بھرپور منہ توڑ جواب دیں گے. جی اچھا رانا شہزاد, آپ دفاعی نقطہ نگاہ سے ایک تسلسل کے ساتھ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور ایسے واقعات سے بخوبی آگاہ بھی ہیں, بھارت کی حقیقت کو بھی بخوبی آپ سمجھتے ہیں. پہلگام واردات جو ہے مودی کی دہشت گرد ذہنیت کی عکاسی تو کرتی ہے ساتھ, لیکن وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی بڑا زبردست پیغام دیا اور بڑے اچھے جسے کہتے ہیں کہ پنچ ڈیلیور کی انہوں نے کہ مودی اپنی اوقات میں رہیں, اور جتنی نفرت اور سیاست اور ہندوتوا کا پرچار بھارت میں ہو رہا ہے وہ بھارت کے اپنے لیے ہی خطرناک ہے, اندرونی طور پہ شکست و ریخت کا شکار ہوگا بھارت. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو فیکٹس ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ جی مناظر آپ نے بالکل درست سمت کی طرف نشاندہی کی ہے. بھارت اس وقت شدید جو ہے سیاسی پریشر کا شکار ہے. ابھی جو ریسنٹلی بھارت میں عام انتخابات ہوئے, پہلی بار جو ہندوتوا کی جو جماعت جس کو پرچار یا علمدار ہے بی جے پی, اس کو تقریباً پورے بھارت میں ہر جگہ بڑا ٹف ٹائم ملا اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی وفاق میں حکومت بنائی ہے. کانگریس نے پہلی بار جو ہے وہ بہت ہی عرصے بعد کم بیک کیا اور بڑا شاندار کم بیک کیا ہے. تو اس وقت مودی کو جو ہے وہ اپنی سیاسی محاذ پر بھی بہت شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میں ایک اور حقائق کی طرف روشنی ڈالتا چلوں کہ پاکستان کی معیشت کو ابھی ہم نے ٹیک آف کرنا شروع کیا ہے. الحمدللہ موجودہ حکومت نے بڑی اچھی پالیسیاں دی ہیں. تو یہ بھی دشمن کی آنکھ میں بڑا کھٹکتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف نہ کر جائے. اور جب بھی پاکستان نے ٹیک آف کرنے کی کوشش کی ہے, بھارت نے کبھی ایل او سی کا محاذ کھول دیا, کبھی آپ نے لائن آف ایکچول کنٹرول جو ایل سی اے ہے جو ہماری وہاں پر کھول دیا, کبھی آپ انٹرنیشنل بارڈر پر موومنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج جو انہوں نے یہ یک طرفہ اقدامات کیے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے یک طرفہ معطل کر دیا, اسی طرح اور جو پاکستان مخالف اقدامات کیے ہیں, تو پاکستان نے ٹٹ فار ٹیٹ جو جواب دیا ہے وہ بڑا ہی مؤثر ٹھوس دیا ہے. ابھی اس کی ایک اور چھوٹی سی میں بات بتاتا چلوں اپنے ناظرین سے کہ جو ہم نے جو شیئر کی ہم نے ایئر سپیس جو بند کی ہے بھارتی فضائی کمپنیوں کی, اس سے بھارت کی جو اکانومی ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. خاص طور پر جو ان کی انڈین ایئر لائنز آپریٹرز جو ادارے ہیں وہ اس وقت چیخ رہے ہیں. جو بھارتی عوام ہے وہ اس وقت اپنے حکومت پر سوالات اٹھا رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح پہلگام واقعہ ہوتے ٹھیک 10 منٹ بعد پاکستان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی. یہ ممکن ہی ہے دنیا میں کہ آپ اتنا بڑا ایک واقعہ ہونے دیتے ہیں جسے آپ سو کالڈ دہشت گردی کہتے ہیں, جبکہ دنیا بھر کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو گن مین فائرنگ قرار دے رہا ہے. ابھی تک میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی پریزیڈنٹ نے جو پہلی بار اس ایشو پر بات کی ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی قرار نہیں دیا. پوری آپ ان کی جو ہم نے آواز سنائی ہے اور صحافیوں سے بات چیت سنائی ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی قرار نہیں دیا. وہ بھی اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا ایشو ہے دونوں ملکوں کے درمیان, کشمیر کا معاملہ اس کو حل ہونا چاہیے. اور جب پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر بنے تھے تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا یہ باقاعدہ ثالثی کی پیشکش کی تھی کہ ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دنیا ہے وہ تو اس معاملے کو تسلیم ہی نہیں کر رہی, یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے. اور یہ پاکستانی ریاست کی میڈیا کی بڑی کامیابی ہے کہ ہم بھارت کا جو ہاسٹائل پراپوگنڈا تھا اس کو بڑی مدبر اور مدلل انداز میں نہ صرف نگیٹ کیا ہے بلکہ ہم نے جو کاؤنٹر بیانیہ دیا ہے وہ دنیا اس بیانیے کو تسلیم کر رہی ہے. اور جو ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررسٹ جو ایکسپورٹ ہے, ہمارا بیانیہ اب دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ بھارت اسٹیٹ سپانسرڈ جو ٹیررزم ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور ایکس جو پرائم منسٹر ہے کینیڈا کے جسٹن ٹروڈر, ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ بھارت ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے. یو کے میں ہو رہا ہے, امریکہ نے اٹ سیلف وہ بھارت کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی واضح ٹھوس حقیقت ہے کہ بھارت کا جو ایک چہرہ ہے, جو دورہ معیار ہے, وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. بالکل.
ریاض برکی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ اگر کہا جائے کہ بائیلیٹرل نہیں انٹرنیشنل ایک معاہدہ تھا, اس کو معطل کر دینا پاکستان سفارتی طور پر کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو میں بتاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سارا سیاسی ہے. ابھی جو اس طرح میں نے بتایا کہ وہاں انڈین میڈیا بھی میں دیکھ رہا تھا, انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا تھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ کیونکہ اپنی جو مقبولیت ہے وہ بتدریج کھو رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ایسے معاملات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ابھی تھرسڈے یعنی جو لاسٹ تھرسڈے تھا بہار میں انہوں نے ایک الیکشن کمپین سے جو ہے وہ ایڈریس کیا, حالانکہ اس وقت اپوزیشن پارٹیز کا وہاں انڈیا میں ایک میٹنگ تھی اسی معاملے پہ, وہ اس میں نہیں گئے. آپ خود اس کی سوچیں, اس کی سنجیدگی اور ان کا مقصد سمجھیں کہ وہ وہاں جانے کی بجائے بہار چلے گئے, وہاں انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین سے جو ہے وہ خطاب کیا اور پاکستان پہ جو ہے الزامات کی بچھاڑ لگا دی. جبکہ اگر یہاں پاکستان کا دیکھا جائے, یہاں دیکھیں فوری جو قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا اس پہ ایک ریئیکشن دیا گیا. پھر پارلیمنٹ جو سب سے بڑا فورم ہے جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, کل ہم نے دیکھا کہ نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں بشمول پی ٹی آئی, اے این پی اور سب نے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ سب ایک پیج پہ نظر آئیں. ٹھیک ہے, اور جہاں تک بڑی پارٹیز کا ہے, آپ نے بھی سنا بھی ہوگا پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, انہوں نے بھی واضح طور پر یہ جو اب انڈسٹریٹی کی جو بات کر رہی ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی بھی صورت بھارت کو اپنے پانی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انڈس میں دریائے سندھ میں یا تو ہمارا پانی گا یا پھر آپ کا خون بہے گا. بالکل. تو اس طرح کسی, اور دوسرا یہ کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, ایک معاہدے کے تحت ہے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ طور پر وہ اس کو بند کر دے یا اس کو معطل کر دے. اس کے لیے انٹرنیشنل جو گارنٹیز ہوتی ہیں وہ گارنٹرز آئیں گے. ایسا نہیں ہے, جب بھی کوئی دو فریقوں کے درمیان ایک تو باہمی ہوتا ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں. ہم یہاں اپنے چھوٹے لیول پہ جب اپنے اداروں کی معاہدے ہوتے ہیں اس میں تو یہ جس پر مودی کی بڑک قرار دی جا سکتی ہے کہ جس کا انٹرنیشنل گارنٹر موجود ہے جس معاہدے کا, اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. یہ بھی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مترادف ہے برکی صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ نہیں وہ کر سکتے. جو باقی جو انہوں نے اقدامات کیے 7 نکاتی جو ان کا ایکشن پلان ہے وہ تو ان کے چلیں ایک طرف ہیں. جس طرح رانا صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے ایئر سپیس بند کر دیا. اب ایئر سپیس میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ پاکستان کا بھی دیکھیں تو ہماری اس طرف ایئر ٹریفک اتنی نہیں ہے, جبکہ انڈیا کی جو ہے پاکستان کے ذریعے ایئر ٹریفک پورا یورپ ہے, آپ کا امریکہ ہے, مڈل ایسٹ ہے, ان کو تو 700 جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا جو ایئر سپیس بند کی $700 بلین کا ان کو نقصان ہوا تھا, تو وہ خود بھی برداشت نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا, اسی سوال کا جواب رانا صاحب سے ملیں گے, لیکن ساتھ چھوٹا سا سوال اور چاہوں گا برکی صاحب آپ سے کہ آپ نے انڈیا 2 دفعہ وزٹ کیا, ان کے میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں. سو انڈین میڈیا کی جو ایک ریئلٹی ہے, جس طرح سے وہ چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ چیزوں کو بری طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں, حقائق کو مسخ کرتے ہیں, اپنی ہی عوام کی آنکھوں میں تسلسل کے ساتھ دھول جھونکی جا رہے ہیں, وہ سستے گھسے پیٹے ڈائلاگ, اور پھر یہ ہے کہ اپنی ہی کہی ہوئی باتیں بالکل اگلے ہی دن جو وہ اپنے ہی منہ پہ واپس پڑ رہی ہوتی ہیں, اپنی خبریں باؤنس بیک ہو رہی ہوتی ہیں. سو انڈین میڈیا کی ریئلٹی رہ کیا گئی ہے؟ گودی میڈیا جو ہے وہ کتنا مزید ذلیل ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ ان کی حقیقت آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں بڑی بھڑکے مارنے سے یا جھوٹ بولنے سے جھوٹ تو سامنے آ جاتا ہے, اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی مہینوں لگے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں ایک ان کا جو ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی مشہور, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو کپل ہے, ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مرد کو انہوں نے دکھایا کہ جی یہ بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں. دوسرے دن وہ اسی انڈین میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو جی زندہ ہیں اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ انڈین میڈیا کا ایک وتیرہ ہے, حالانکہ وہ بڑا پاورفل ہے, ان کا فلم وہ بھی, لیکن اس کے باوجود جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, جس طرح کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو وہ اگلے ہی دن نہیں تو 2-3 دن بعد وہ خود ہی سارا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور انڈین میڈیا کا اعتبار نہیں ہوتا. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایڈ کیجئے. جی مناظر, پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بات کروں گا کہ انڈیا نے یک طرفہ اس کو جو ہے وہ معطل کر دیا, تو یہاں پر ایک ایج اصل پاکستان کو بھی ہوا ہے. ایسا ہی ایک معاہدہ انڈیا اور چین کا بھی ہے. اب انڈیا یہ کام کر کے خود ہی پھنس گیا ہے. چین اگر چاہے تو اس معاہدے کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی جو بین الاقوامی گرانٹڈ تھا, آپ نے اس کو یک طرفہ معطل کر دیا ہے, تو وہ جو برہما پتر دریا ہے جو چائنا سے نکلتا ہے اور چین اس کا چین بھی بند کر دے گا, تو انڈیا تو ایک تو میں اس کا یہ آپ کو ایک رخ دکھا رہا ہوں. دوسرا, آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی,
इंडियन मीडिया की हॉस्टैलिटी को देखकर ही अभी कुछ अर्सा पहले इंटरनेशनल जर्नलिज्म में एक नया सब्जेक्ट मुतारफ़ करवाया गया है, उसका नाम है पीस जर्नलिज्म। पीस जर्नलिज्म का जो मेन थीम है वो ये है कि आपने माशरे में अमन के क़याम के लिए अपना पॉजिटिव रोल एज ए मीडिया मैन कैसे अदा करना है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया को वो पीस जर्नलिज्म, मैं उनको तजवीज़ दूंगा, सुजेस्ट करूंगा कि वो उसके 2-4 चैप्टर पढ़ लें, उन्हें पता चले कि कैसे आपने जर्नलिज्म करनी है, कैसे आपने अपना कौमी बयानिया बनाना है, या पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से सीख ले कि हमने किस तरह उनके जारहाना और बेईमाना, मैं उससे क्या कौमी मीडिया पे बैठ के बात करूं, हमने कैसे उनको काउंटर किया, बल्कि ऐसा काउंटर किया कि अब वो अपने बयानिए से पीछे हट रहे हैं। जो उनका मीडिया का बड़ा गुरु है अर्नब स्वामी मोदी, वो जो है वो अब वो पाकिस्तान टेलीविज़न के बाद उसने क्लिप अपने प्रोग्रामों में शेयर करना शुरू कर दी हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं इस मौका पर पाकिस्तान की तमाम मीडिया का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि हमने जितना मैच्योर और जितना मुदल्लल उनको रिस्पांस दिया है भारतीय मीडिया को, और बग़ैर हमने किसी लाइन के जो हक़ाइक़ हैं वो सब सामने लाए हैं। तो ये पाकिस्तानी मीडिया को भी मैं सलूट पेश करता हूँ, और पाकिस्तानी मीडिया के ये जो जवान हैं अपने फ्रंट पर बेलौस लड़ रहे हैं और कमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने साबित किया है कि जो पीस जर्नलिज्म का नया चैप्टर दुनिया में इस वक्त इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में, उसकी जो रियल जो हमने उसको अमली तौर पर करके दिखा दिया, ये है पीस जर्नलिज्म। हम जंग के हामी नहीं हैं, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन पाकिस्तान के इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। और आज वज़ीर आज़म ने ये बारहा कहा है कि हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी हैं, हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी इकानमी को सफ़र हुआ है इस जंग से, और हमें आप बता रहे हैं हमसे ज़्यादा कौन इस दहशतगर्दी की जंग से मुतासर हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, अभी भी हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं जो टेररिस्ट जंग के ख़िलाफ़, इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में। तो इसलिए दुनिया को भी हमारा किरदार भी, पैगाम भी समझ में आ रहा है, और ये भारतीय मीडिया इस वक्त परेशानी का शिकार है कि हम क्या बयानियाँ दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं कर रहा। और ये पाकिस्तान के बयानी की सच्चाई है, ये सच की फतह है, और ये अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जब सच आता है और बातिल मिट जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा रियाज बरकी साहब, पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए भारतीय मीडिया का यकतरफा और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करना खित्ते के अमन को दाव पर लगाने के मुतरादिफ नहीं है, एक मजमूम कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ही ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी रेटिंग के चक्कर में यानी एक कौमी मफाद को भी दाव पे लगा रहे हैं। इससे रेटिंग मिलेगी उन्हें या उनका मजाक उड़ेगा? वहाँ पे जो लोकल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ तो इंडियन मीडिया पे अगर आप उसको मॉनिटर करें इस वक्त इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। और मीडिया जो है वो बहुत किरदार अदा करता है, देखें किसी भी मुल्क के लिए, खित्ते में अमन के लिए। और ये वहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के, मैं बताऊँ आपको, बहुत आसान होता है स्टूडियोज़ में बैठ के भड़के मारना। जब आप जाते हैं, राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी गए हैं, मैं 5-6 दफ़ा, यानी अगर जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज तो वैसी हालत जंग में है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और रियल टाइम लड़ रहे हैं। मैंने बाजोड़ में, सवात में, वज़ीरिस्तान में, ये सारे इलाके हमने कवर किए हैं। जब आप मैदान जंग में जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि असल जंग होती क्या है। इंडियन मीडिया की ये एक बदकिस्मती है कि उनके जितने भी वो बैठे हुए हैं स्टूडियोज़ में बैठ के वो भड़के मारते हैं, उनको पता नहीं है कि जंग के असरात क्या होते हैं और जंग लड़ी कैसे जाती है। जिस तरह मैंने बताया कि रियल टाइम अगर वो जाएंगे ना तो फिर उनको पता चल जाएगा। राइट, फिर उनको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया रियाज बरकी साहब आपका, कंट्रोलर PTV न्यूज़, आप हमारे साथ मौजूद थे। राना शहजादुस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप PTV न्यूज़ के कंट्रोलर भी हैं और साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और आज सिचुएशन रूम में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल पर जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। जिससे इंडिया का कद बैनुल अक़वामी
पूरे माशरे के अंदर और कम्युनिटी में बहुत कम हुआ है। हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके दहशतगर्दी की है, उसने कनाडा में लोगों को जाके मारा है, उसने और ममालिक के अंदर लोगों को जाके मारा है। जो मगरबी दुनिया के ममालिक इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस अहमकाना सोच के ज़रिए एक बयान दे देना, इसका पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बहन, हर माँ, हर बेटा, हर भाई, हर बच्चा इसका अपनी ज़िंदगी के साथ अपने पानी के हकूक़ का दिफा करेगा। और हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी पूरी स्टेट इनकी सोच से भी ज़्यादा तकड़ी है। और जो आज से 2 साल पहले इनके एक अभिनंदन था, जो भी था, उसका जो हाल किया था, उससे ज़्यादा बदतर हाल किसी के साथ करने को तैयार है। सर, किसानों के लिए फ्लैट रेट्स और सोलराइजेशन का कोई प्रोजेक्ट? किसानों के लिए और बाकी सार्फिन के लिए आप ईमान से बताएं, आज से 1 साल पहले सोच सकते थे कि ये कमी होगी? 1,80,00,000 सार्फिन, सबसे गरीब जो सारिफ है, 3.5 करोड़ में से 1,80,00,000 सारिफ, उसकी 56% से ज़्यादा कमी हुई है। अगले मई के महीने का जो बिल अभी आएगा अप्रैल का, उसमें 56% से हमने कम किया जून से लेके अभी तक। किसान को पहले फ्यूल की एडजस्टमेंट के अंदर कीमतों की कमी नहीं मिलती थी, आज से 2 महीने पहले 2.5 रुपए की वो कमी लाए, 7 रुपए 41 पैसे की और कमी लाए। तो किसान के लिए अब ट्यूबवेल को इस्तेमाल करना उसके शायद वारे में आ गया हो इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश है, मैं बोलता कम हूँ, कोशिश करते हैं वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर काम करें, आपको रिजल्ट साथ साथ इंशाल्लाह देते रहेंगे। मियां नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी से बड़े गहरे रवाबत हैं, क्या इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी खत्म करने में मियां नवाज शरीफ? देखिए, मियां नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, उनकी एक बहुत सीनियर पोजीशन है पाकिस्तान की सियासत में। जो बलूचिस्तान का मसला था उसमें भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उनको कंसर्न है। जब भी हुकूमत पाकिस्तान को, इस सियासी माशरे को और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इंशाल्लाह मियाँ साहब की दानिशमंदी और उनकी स्टेट की जो विजन है, उसकी जब भी रोल अदा पड़ेगी, तो ज़रूर हम मियाँ साहब से बतौर वफाकी हुकूमत ज़रूर गुजारिश करेंगे। सर, मेरा सवाल, इस वक्त हम इसके ऊपर कुछ सोच नहीं। भारत की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को दुनिया जानती है और मगरबी ममालिक इससे बराह रास्त मुतासर भी हुए। किसी भी जारहियत का भारत को फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम दुश्मन की सोच से भी ज्यादा मजबूत हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद अलगारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। छोड़ देगा वो आधी को लेके हाथ में रुख मोड़ देगा जो मिलकर बन नू मैक्स करो ना कलियां फ्लेक्स करो यही सोच के आ गया मैं सारी दुनिया कहती है ओ किंग ऑफ बंगड़ा एक ही है। अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल की ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए मैं हूं रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 16वें मैच में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से लाहौर में होगा। मैच रात 8 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट्स हैं। कलंदर्स ने अब तक 5 मैच खेले, 2 जीते और 3 हारे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के 2 पॉइंट्स हैं। सुल्तान्स ने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता और 4 हारे हैं। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 20 मैचेस खेले जा चुके हैं। लाहौर कलंदर्स ने 9 और मुल्तान सुल्तान्स ने 11 मैचेस में फतह समेटी। बॉलर्स की जानिब से शानदार कारकर्दगी की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को पीएसएल के 15वें मैच में 5 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स के 142 रन के जवाब में कराची किंग्स 8 विकेटों पर 137 रन बना सकी। दिलचस्प मैच की तफसील जानते हैं निसार मेहदी से।
قذافی स्टेडियम लाहौर में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 19.3 ओवर्स में 142 रन बनाकर आउट हो गई। कोयटा का आगाज अच्छा न था और इब्तिदाई 4 विकेटें 44 के स्कोर पर गिर गई। कप्तान सऊद शकील, फिन एलन और रायली रोसो हसन अली का शिकार बने। कोसल मेंडिस ने 36 रन स्कोर किए। और ये विकेट जो है हसन अली को मिल गई। फील्डर को रखा गया पीछे और गेंद हवा में थी मगर गैप में गई, बाउल कर दिया। छठी विकेट की शराकत में हसन नवाज और फहीम अशरफ ने मजमूई स्कोर में 59 रन का इजाफा किया। हसन नवाज 35 रन बनाकर आउट हुए। फहीम अशरफ ने 28 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। और बहुत ही आला छक्का मारा है और एक और बहुत ही शानदार शॉट छक्के पे ये ओवर एंड किया है। कराची किंग्स की जानिब से हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मीर हमजा और अब्बास अफरीदी के हिस्से में 2-2 विकेटें आई और ये ले गए विकेट ऑफ स्टंप के बाहर। कोयटा ग्लेडिएटर्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के बायस कराची किंग्स 143 रन का हदफ हासिल न कर पाई और 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना सकी। डेविड वार्नर के 4 रन पर आउट होने के बाद टिम सेफर्ड और जेम्स विंस के दरमियान 73 रन की शराकत कायम हुई। टिम सेफर्ड ने 47 और जेम्स विंस ने 30 रन स्कोर किए। शानदार शॉट, ये महंगा साबित होगा। उठा दिया इस बार, बहुत शानदार खेलते हैं, बहुत टाइम मिल गया था इस मर्तबा। दोनों के आउट होने के बाद कोयटा के बॉलर्स हावी हो गए। कराची किंग्स के 6 बल्लेबाज सिंगल फिगर में आउट हुए। कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से मोहम्मद आमिर, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। PSL के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहंदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बल्लेबाजों के लिए 4 रन और मिले। ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर ने 5 रन से कराची किंग्स से जीत लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। कराची किंग्स ने 6, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी ने 5-5 जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैचेस खेले हैं। पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। कराची किंग्स की टीम 6 में से 3 फतुहात और 3 नाकामियों के बाद 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 4-4 पॉइंट्स हैं। रन रेट की बुनियाद पर कलंदर्स तीसरे, ज़ल्मी चौथे और ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 में से सिर्फ 1 मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने कहा है कि कराची किंग्स के खिलाफ मैच में टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। लाहौर में मैच के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फहीम अशरफ का कहना था कि किंग्स के खिलाफ मैच के लिए इस्तेमाल होने वाली पिच मुख्तलिफ थी। कोशिश थी कि आखिरी ओवर में अपना बेहतरीन करूं, बेहतरीन परफॉर्मेंस से एतमाद में इजाफा होगा। उन्होंने लेजेंडरी क्रिकेटर सर विवन रिचर्ड्स की मौजूदगी को टीम के लिए अहम करार देते हुए कहा कि सर विवन रिचर्ड्स जैसे अजीम क्रिकेटर्स खिलाड़ियों को हमेशा एतमाद देते हैं, जिनसे टीम का मोराल बुलंद होता है। उनकी मौजूदगी से ड्रेसिंग रूम का माहौल खुशगवार रहता है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कराची किंग्स को बड़ा धचका। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल ने घुटने की इंजरी के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर एडम मिल ने 15 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। एडम मिल ने टीम के साथ रहकर सेहतियाबी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तिबी मुआयने के बाद तस्दीक हुई कि वो PSL के रवां सीजन में मजीद नहीं खेल सकेंगे। कराची किंग्स इंतजामिया ने फास्ट बॉलर की खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची किंग्स ने एडम मिलने की जगह पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग को रवां सीजन के लिए मुस्तकिल तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया है। PSL की ताज़ा तरीन अपडेट से फिलहाल इतना ही। वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर
तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 47, सिब्बी, जैकबाबाद 46, दादू, तुरबत, लाड़काना और मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हर पाकिस्तानी का विर्द बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमे पर पाकिस्तान के दिल की तर्जुमानी करता है। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया है। हमेशा जिंदाबाद। खालिद की रज़ा से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे। हर वीर और जवां यक दिल यक जान, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कोना मकाम बेदार ज़माना बोलेगा। हर कूचा करिया में हर सू ये नारा बस आबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। मिट्टी से जो हमने अहद किया, मिट्टी से जो हमने अहद किया, वो अहद हमेशा याद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। इस पाक ज़मी की सूरत में खालिक का हमें इनाम मिला। शोहदा के लहू की अजमत से हम सबको ये पैगाम मिला। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है। ये धरती हर पल शाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा वो में जोर शजात के बाजू की कुव्वत क्या जाने। जो राह वफा में बहता हो उस खून की कीमत क्या जाने। फिरता बक़यामत दुश्मन इसका, फिरता बक़यामत दुश्मन इसका, हर लम्हा बर्बाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। इसी दुआ और इसी नारे के साथ आज का बुलेटिन पहुंचता है अपने इख्तिताम को। आपसे इजाज़त चाहते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।